Namaste Ji, Namaste, Sat Sri Akal. Welcome to Courtroom. I hope that you're doing well. So let us today talk about the DU LLM entrance examination. Now there is no paper called the DU LLM anymore. It used to be conducted till 2022. So if you want to take admission in DU LLM now, you will have to attempt the CUET PG, which has been notified. The last date to fill the form, I think, is on the 2nd of February. The exam is scheduled to take place anytime between the 13th of March to the 31st of March. And in today's session, we'll be looking at the 24 ka question paper. Free download of the 24 ka question paper and 23 ka question paper is given on our website. You can go there and, well, download it. I will be assessing it. I want you to take a pen and paper out to make maximum use of this session. It will give you a very good idea of what do you need to prepare, what can you leave, what all you must study, what all you must not study. So the question paper code is COQP14. This is the code that you will use and present the score of COQP14 under CUET PG to DU when the counseling opens. Hopefully the process is clear. So if you are in your final year of law, which ideally you should be if you're watching this, then you can take the exam. Let us say aapka result of the final semester comes out sometime in June or sometimes in May. Doesn't really matter, because जब वो score जब आपका LLB का, like your degree will become complete, जब DU की counseling होगी तो आप अपना score उसमें present कर देंगे. So you can take the exam without any problems whatsoever, but you have to attempt it in March. So you roughly have about 2 months from now. तो अब 2 महीने के अंदर ये देखना है कि तैयारी कैसे करनी है, क्या नहीं करनी है, ये समझ में आ जाएगा from the question paper analysis that we are going to be doing. So do try to jot down all the details that I'll give you. Then we'll do a breakup subject wise at the end, after discussing each and every question that was asked. I will be discussing the topics that will give you a very fair idea. And whatever I keep on telling you, just make a note of it. You can then decide whether 2 months are sufficient for your prep as to whether you want to attempt this paper or not. But I would still say do attempt it, because CUET PG का score आपके पास एक बार आ जाएगा, then it can be used in pretty much all central universities which are taking part in the CUET PG for this very program. I think Jamia conducts its own LLM entrance, but you'll just have to check the website of CUET PG that whether they are participating in CUET PG or not. But mostly all central universities are. However, some universities do opt out of it. All right. तो लिखना शुरू करेंगे. So this year the pattern has been changed, as in the timer, the duration has been changed. LLM में there is nothing pretty much to be changed as such, but you have 90 minutes and you have 75 questions that you have to solve out. All right, now 75 questions. These questions usually can be solved in 2 ways. Now either you know the answers to these questions or you do not. So it's either you pretty much, it's a straight you know it or you don't know it. But mostly LLM के papers में अगर आपके subject थोड़े बहुत भी ठीक ठाक तरीके से तैयार हैं, basically सारे judiciary की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी LLM का paper attempt करते हैं. So from prelims level आपकी जो तैयारी जो ठीक ठाक रहती है, उसके अंदर आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से भी काफ़ी क्वेश्चंस टैकल आउट कर सकते हैं. सो डोंट जस्ट लीव आउट एनी क्वेश्चन जस्ट बिकॉज यू डू नॉट नो द आंसर टू इट upfront. You can use POE very well. So let us start. So I am using the 2024 का question paper. Again I repeat myself कि वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, कृपया करके डाउनलोड कर लीजिए विद द करेक्ट आंसर की. द आंसर की जिसके अंदर ये भी बताया गया है कि क्वेश्चंस कौन से ड्रॉप हुए हैं. इट वुड बी आइडियल इफ यू ओपन द क्वेश्चन पेपर अलॉन्ग साइड मी. मैं क्वेश्चंस तो नहीं डिस्प्ले करूंगा यहाँ पर. आई विल जस्ट बी टॉकिंग अबाउट द टॉपिक्स एंड दैट विल गिव यू अ वेरी डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड वाज अबाउट CPC, the landmark case for which tells you that if, let us say, a writ petition in the High Court has been decided on merits or dismissed on merits, a similar petition will be hit by res judicata if filed under 32. So usually, let us say, the doctrine of res judicata is applicable on writs, etc. or not. I'm giving you an alternate form of the question. So the first question is about a CPC का landmark case. So we are opening out with CPC. इसका मतलब pro tip, you need to revise CPC and its landmark cases. CPC के ऊपर pre level पे I had shot a course once upon a time. It is available for free on this very channel, the playlist. It will kill off most of CPC for you. Do make use of it, and
well, we'll talk about more as to what to do. Now, international law mein, international, so whenever I've written IL, it is international law. Let me move here and I'll show you from this side. International law mein theories अलग basically और legal scholars के नाम, so match the following करके यहाँ पर क्वेश्चन होगा, या नहीं तो डायरेक्ट थ्योरी भी पूछ ली होगी. आई डू नॉट हैव द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ मी. देन यू हैव क्वेश्चन 3 इज ज्यूरिस्प्रूडेंस. तो यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ का एक सवाल आ गया. फिर ज्यूरिस्प्रूडेंस में थ्योरी पूछ रहे हैं. दे हैव गिवन यू अ कोट, इंडिविजुअल इज द सम यूनिट एटसेट्रा. सो quotations from jurisprudence becomes one topic for you कि किसने किस legal scholar ने क्या ये बोला था, which is a very standard, very very standard topic. jurisprudence की playlist में जाइएगा और jurisprudence revise कर लीजिएगा. इसी चैनल पे सब कुछ पड़ा हुआ है, कोई देखता नहीं, कोई अंगूठा दबाता नहीं है, इसलिए ये वाले वीडियोस कभी सर्च रिजल्ट्स में कोई पॉपअप होते नहीं है. और जो लोग देखते हैं वो जानबूझ के अपनी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल जाते हैं और उसके बाद एक थैंक यू भी नहीं बोलते. खैर एनी विच वे. देन यू हैव जूरिस की थ्योरी. तो इसमें क्वेश्चन आया था कि ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव हैज बीन लिंक्ड टू लाइक हु कॉइन्ड दिस टर्म. और वैसे तो 2 कॉइनिंग द टर्म्स के और भी क्वेश्चन है. विक्टिमोलॉजी किसने टर्म कॉइन करी है, क्रिमिनोलॉजी किसने टर्म कॉइन करी है. तो यहाँ पे ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव मैंने उसको जूरिस में कर दिया. कई लोग इसको एडमिन लॉ में क्लासीफाई कर देंगे. तो जैसी आपकी इच्छा, हर किसी का क्लासिफिकेशन रास्ता अलग है. मैंने इसको जूरिस में उठा के मैं ले आया हूँ. सो यू नीड टू नो हु गेव विच थ्योरीज एंड कोटेशन वाले भी क्वेश्चंस आपने करने हैं. यूजुअली PYQs आपको LLM की कोई भी स्टैंडर्ड किताब में ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे. तो ये टॉपिक आपके वहाँ से निपटेंगे. कॉन्स्टिट्यूशन में केस लॉ, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. सो नाउ Constitution has been introduced as a subject. Then CPC and limitation की limitation is applicable on suits, appeals. मतलब वो अलग अलग केस लॉ की एज इन लिटिगेशन की अलग अलग टाइप्स बता दे, पूछ लेगा कि whether limitation is applicable or not. So CPC के अब आपके पास 2 आ गए. मैं लास्ट में आपको एक फुल एंड फाइनल लिस्ट भी दूंगा कि किस सब्जेक्ट से कितने. देन यू हैव ICS और राइट इन पर्सोनम, राइट इन रेम के मतलब वगैरह और 2 और राइट. मैच द फॉलोइंग लिस्ट है. तो एक तरह से 4 सवाल होते हैं लेकिन होते एक के अंदर ही है. देन यू हैव कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट और कैबिनेट का रिश्ता, वेदर प्रेसिडेंट कैन आस्क देम टू रिकंसिडर. सो यू आर स्पेसिफिकली लुकिंग एट पॉलिटी. Constitution again, Article 25 is subject to public order, health, morality, which is a standard question used to be asked in DU LLB as well. Constitution ordinance अगर गवर्नर ने पास करी है तो उसकी टर्म कितनी है. एंड अगेन कॉन्स्टिट्यूशन इज आर्टिकल मैच. 4 आर्टिकल्स दे देंगे और उसके साथ में टॉपिक लिस्ट से मैच आउट करा देंगे. होपफुली इट इज क्लियर. Very very rudimentary, very very mundane, I would say, sort of questions in Constitution, at least, even in ICA till now. Then question 12 is list 1 and 2 दे दी थी और इसके अंदर क्लासिक केस लॉज. मैं इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ही क्वालिफाई करा रहा हूँ, एज एन क्लासीफाई करा रहा हूँ, सॉरी. एंड सुनील बत्रा, बच्चन सिंह इज रेयरेस्ट ऑफ रेयर एटसेट्रा. तो लैंडमार्क तो बेसिकली जजमेंट्स तो रटनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट. हो राइट. इस चैनल में आई थिंक DU LLB वगैरह के, तब खैर इस साल अगर मुझे अभी टाइम मिला तो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की एक लिस्ट तो मैं यूट्यूब पे एक सेशन करवा दूंगा. हाउएवर यू विल नीड टू लीव अ कमेंट. हमारे लेक्चर्स पे ना कोई कमेंट डालता है, कुछ पता ही नहीं चलता. इनफैक्ट मतलब सारी इन्फॉर्मेशन आई बिलीव दैट आई यूजुअली सॉर्ट आउट ऑल क्वेश्चंस ऑफ स्टूडेंट्स बिफोर हैंड. तो उसमें कोई बातचीत करने को राजी नहीं है. तो नीचे लिख दीजिएगा किस किस चीज़ में क्या क्या है. आई यूजुअली ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू sensible queries. If you leave an idiotic comment, well, goodbye to you any which way. And you know how YouTube works, right? I mean, I need not say the standard old stuff ki ye kariye wo kariye. You know pretty much what to do. You are smart enough. Then jurisprudence ki theory again, which law system is connected to which legal scholar etc. लीगल टर्म रेस नलिस, बट थोड़ी सी एडवांस तरीके में पूछ रहे हैं कि रेस नलिस रूल क्या है. देन फिर इन्होंने अगेन, मैं इसको जूरिस में क्लासीफाई करूंगा. तो लीगल टर्म हो गया मिसलेनियस में. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप. थिंकर आ गया आपका. थिंकर 4 थिंकर की लिस्ट दे देंगे, लिस्ट 1 and 2, और उसके सामने स्कूल्स मैच आउट करा दीजिए. देन CRPC सेक्शन, किस सेक्शन में सेट ऑफ दिया हुआ है, सब कुछ CPC वाली प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है. कृपया करके उस पूरे के पूरे कोर्स को देख लीजिएगा. Free resources available, but nobody values a thing for free. I think I'll make those videos private and put it up on my website only. TPA की करेक्ट स्टेटमेंट, लाइक TPA के रिलेशन में एक करेक्ट स्टेटमेंट 4 दे रखी हैं, और फिर ये A and B only, B and C only, C and D only. So what I call as multimodal option type questions. So slightly on the tougher level. Question 18 Constitution में polity में again
ये आपके साइन वगैरह के क्वेश्चन है कि हु नीड्स टू साइन वेयर, एंड कॉन्स्टिट्यूशन अगेन 356 इज इमरजेंसी के ऊपर एक क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी के बारे में मल्टीपल स्टेटमेंट्स दे रखी हैं एंड दे आर बीइंग इंटरकनेक्टेड विद आर्टिकल्स एंड केस लॉज, एंड देन यू आर बीइंग आस्क्ड टू पॉइंट आउट which two are correct, which two are incorrect, stuff such as that. Now I've reached question number 20. Now what I am trying to do is trying to create a mock test series which is available on our website. तो मैंने उसके अंदर क्या करा हुआ है कि सेक्शनल वाइज टेस्ट लगा दिए हैं, एंड आई एम ट्राइंग टू क्रिएट 5 exact mocks on this very pattern, and the further mocks I will create in a general pattern. तो सब में होंगे 75 question and 90 minutes only, but I will use a lot of questions of law from here, there, everywhere in those mocks. So 5 I'll create absolutely original to these ones, and then later on I will basically go in for a general pattern जिसके अंदर कभी मैं IPR के क्वेश्चन बढ़ा दूंगा, कभी मैं फैमिली लॉ के क्वेश्चन बढ़ा दूंगा, ताकि एक स्टूडेंट को so via the mock test series you get a score boost of like let us say 10-20 marks, which is a lot in a competitive exam. Even if you get a score boost of 5 works well for me, but however मतलब 300 के पेपर में if you are only scoring 100 and you're getting a score boost of 5 marks, well then nothing, कोई दाल गलने नहीं वाली. I am talking about cut throat competition की लास्ट में एक 5 मार्क 10 मार्क की score boost मिल जाए. Again, everything is on our website. Alright, do go there, explore the free resources, do watch the CPC का जो free वाला जो resource है on YouTube. आई थिंक मेरी वेबसाइट पे भी मैं वो वाला फ्री की एम्बेड कर दूंगा यूट्यूब पे, यू कैन गो एंड वॉच दैट. CPC मास्टर्स नहीं रेफर कर रहा हूँ, CPC मास्टर्स इज माई CPC की क्लासेस दैट आई ऑफर इन माई जुडिशरी बैच यहाँ पे इन माई ऑफलाइन क्लासरूम. तो वो भी हमने स्टैंड अलोन हमने अपनी वेबसाइट पे डाली हुई है. वेबसाइट पे जाके देख लीजिएगा, आप इतने अक्लमंद और पढ़े लिखे इंसान हैं. 21 फैमिली लॉ और CPC के बीच में लाइक RCR की रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स वाली डिक्री, हाउ कैन इट बी एग्जीक्यूटेड इन व्हाट मोड. सो दिस इज अ कॉम्बो पैक ऑफ फैमिली लॉ एंड CPC दैट दे हैव गिवन. देन क्वेश्चन 22 इज कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में इंटरनेशनल लॉ वाला एस्पेक्ट. वो याद है आर्टिकल 254 के आसपास 248 ऑनवर्ड्स 254 में कि अगर पार्लियामेंट ने ट्रीटी जो कि इस टॉपिक पे ट्रीटी साइन कर दिया और इस पर कोई कानून बना दिया जो कि एक्चुअली टॉपिक इज ऑन द स्टेट लिस्ट, देन व्हाट हैपेंस. I remember I teaching this for DULB. Constitution में preamble में topics की sequence लगा दीजिए. Constitution again लोक सभा executive power. So you are saying it's a chain of constitution based question. तो एक बात तो तय हो गई कि Constitution बहुत अच्छे से तैयारी करनी है. Practice from any all MCQ resources that you have. In our mock series also there is a dedicated sectional test of Constitution of 100 questions. बाकी तो मैं mocks में आपसे पूछ ही लूँगा. देन कॉन्स्टिट्यूशन का 10 शेड्यूल DQ लीगल मैक्सिम्स के लिए, बट थोड़े से एडवांस्ड लीगल मैक्सिम्स. CRPC में टॉपिक्स में सीक्वेंस में लगा दीजिए. इंटरनेशनल लॉ में टर्मिनेशन ऑफ हाउ इज अ ट्रीटी टर्मिनेटेड, व्हाट आर द मोड्स. CRPC अगेन ट्रू फॉल्स टाइप 4 स्टेटमेंट दे रखी है. FIR is in section 207 like for example, so it's in 154. in the newer one you will have to see, but officially जो newer one के अंदर जो इन्होंने जो दे रखा है, जो सारा का सारा काम कर रखा है 173 by the way, but जो इन्होंने जो काम करा हुआ है वो उतना आपका वो नहीं करा हुआ, सिलेबस नहीं नोटिफाई करा है. नई वाली क्रिमिनल एक्ट्स इन्होंने COQP 14 के सिलेबस में नोटिफाई नहीं करी है. हाउएवर JNTA, सो वील कीप ऑन चेकिंग द वेबसाइट, क्योंकि इन्होंने पिछले साल भी ऐसी एक हरकत करी थी इन दी जनरल पेपर ऑफ द LLB कि बाद में इन्होंने आई थिंक सिलेबस गलत अपलोड कर दिया था पहले. हाउएवर आई डोंट थिंक दैट दिस हैपन्स, दिस इज मी ओवर थिंकिंग अ लॉट. एनी विच वे, सो मुझे नहीं लगता कि नए क्रिमिनल लॉज पे आपको टेस्टिंग हो रही है, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट इट. UDHR के बारे में बात करी गई है. UDHR के साथ वही मस्ट हैव बीन 10 दिसंबर 1948 एटसेट्रा करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोल रहे होंगे. क्रिमिनोलॉजी, who coined this term. सो इसको मैं इंटरनेशनल लॉ में डाल दूंगा, बाकी साथ तो मैंने क्लासीफाई करे हुए हैं. CRPC पे कुछ सवाल आ गए, कॉन्स्टिट्यूशन पे मेजरली सवाल आ गए. क्रिमिनोलॉजी, who coined the term, and victimology, who coined the term. कॉन्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन नंबर 33 अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, सो इट्स सॉर्ट ऑफ अ टफ सॉर्ट ऑफ अ केस लॉ की लिस्ट इन्होंने दे रखी है. सेक्शन 89 पे CPC पे लैंडमार्क जजमेंट कौन सी है, दैट इज AFCON, एवरीवन नोज दैट. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कौन सी है जिसको कॉलेजियम की जो फाइनल जो ओपिनियन है दैट विल बी मेड पब्लिक, वो बताइए. सो अगेन आई विल क्लासीफाई दिस एज कॉन्स्टिट्यूशन. RTI एक्ट में कितनी मैक्सिमम पेनल्टी हो सकती है पर डे के हिसाब से बताइए.
आईपीसी की एक इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर से रिलेटेड। आईपीसी में अगेन थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन, बताइए कौन सा ऑफेंस है, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, डिकॉइटी एक्सेट्रा। हाईवे पे आई थिंक किसी के ज्वेलरी या किसी से पैसा लूटा जा रहा था। देन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में वर्कमैन की डेफिनेशन पे स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं कि टीचर इज नॉट अ वर्कमैन, उसका केस लॉ बताइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस लॉज ये बात करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 40, सेबी की एक्ट के ऑब्जेक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड enacting this act, so this is miscellaneous now। अगर आप सिलेबस वैसे देखेंगे ना COQB 14 का, लाइक द PDF जो इन्होंने जो पब्लिश करी है, आप कहेंगे ये तो मतलब पिछले 5 साल 3 साल के जितने भी लॉ का जो आस्पेक्ट जो 5 साल में या 3 साल का सारा ही पूछ लिया है। अब सारे के सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर करने बैठेंगे तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। टॉपिक वाइज लिस्ट करके इन्हीं टॉपिक्स में प्रिपेयर कर लीजिए एंड डू द सेम एक्सरसाइज योरसेल्फ फॉर द 23 का पेपर एंड सी what is the best shot that you can take within 2 months, all right। डॉक्ट्रीन मैच, अगेन केस लॉज के सामने 4 डॉक्ट्रीन्स दे दी और बता दी, पूछ लिया कि कौन से केस लॉ में ये डॉक्ट्रीन एलुसिडेट करी गई थी। अगेन लिस्ट इन 1 and 2। आईसीए के अंदर पूछ लिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आईसीए में अगेन ये आपके गन पॉइंट पे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है तो उसकी इलस्ट्रेशन बना के पूछ लिया कि अब इसमें क्या होगा, वॉइड होगा, वॉइडेबल होगा। सोगा में राइट ऑफ लियन किस सिचुएशन में आपके पास आ जाता है। पार्टनरशिप एक्ट की एक इलस्ट्रेशन बना के क्वेश्चन दिया हुआ है। 46 इज फैमिली लॉ, स्पेसिफिकली HMA 1955 में अगेन वॉइड मैरिज इज वॉइडेबल मैरिज, सो दिस गिव्स यू अ क्लू एज टू व्हाट टू प्रिपेयर इन HMA। फैमिली लॉ में अगेन लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में देख के केस लॉज दे दिए हैं, सो बाइगमी, RCR एक्सेट्रा, तो उसके साथ सरला मुद्गल वगैरह टाइप जो केस लॉ जो स्टैंडर्ड फैमिली लॉ के क्लासिक हैं उनके बारे में इन्होंने पूछताछ आपसे करी है। क्वेश्चन 48 फैमिली लॉ, अगेन मेंटेनेंस ऑफ वुमेन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केस लॉ विच रिलेट्स टू मेंटेनेंस ऑफ मुस्लिम वुमेन। थोड़ा सा पेपर का लेवल ठीक ठाक डिसेंट लेवल पर है और फैमिली लॉ देखिए भर दिया इन्होंने, राइट। सो दिस गिव्स यू एन आइडिया, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से करनी है, फैमिली लॉ बहुत अच्छे से करना है। जूरिस के लीगल स्कॉलर्स, देयर स्कूल्स एंड कोटेशंस अभी तक जो निकल कर आई हैं, एज इन द टॉपिक जो निकल कर आए हैं। और फिर आपका इंटरनेशनल लॉ में जो बेसिक है, ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। फैमिली लॉ में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड अडॉप्शन। इनकम टैक्स एक्ट में अब चले गए हैं कि इनकम, if you get a specific income then like from a specific source, question मुझे exact याद नहीं है, it will be calculated under which head, so this is question number 50 for you। Income tax again act is again section 17 deals with, so 2 questions again, you will see a pattern developing here that from mostly all topics they are asking 2 to 3 questions except constitution, family law जहाँ पे ज़्यादा पूछ लिए गए हैं। फैमिली लॉ अगेन HMA में सीक्वेंस पूछ ली गई है, तो सीक्वेंस ऐसे होगा कि एक्ट के अंदर सप्तपदी, डिवोर्स, RCR, कहाँ पर कैसे किस सीक्वेंस में दे रखे, म्यूचुअल कंसेंट वाला पहले है या RCR बाद में है। 13B, you'll need a good idea of the act to tackle this sort of a question। ICA के लैंडमार्क जजमेंट्स इन सीक्वेंस पूछ लिए गए, तो ईयर मतलब आपको पहले पता होना चाहिए कि ये वाला पहले हुआ था उसके बाद ये वाला आया होगा। गिव्स यू आई थिंक यू कैन टैकल दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन बाय फेयरली रिवाइजिंग ICA इज कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के ऊपर एक क्वेश्चन है। देन यू हैव मरीन इंश्योरेंस एक्ट, I would put it under contract act, I would put it under international law as well। so marine insurance contract के ऊपर इन्होंने situation बना के आपसे पूछा हुआ है। interpretation of statutes में like sources के बारे में या इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से लीगल मैक्सिम्स जो रिलेटेड हैं उसके ऊपर प्रश्न है। और फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स जो हैं वो नॉट एन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एड ऑफ इंटरप्रिटेशन, तो सोर्सेज के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। सो इंटरनेशनल लॉ में भी सोर्सेज पे स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन जो आता ही है इन LLM एग्जाम्स। कॉम्पिटिशन एक्ट पे 2 सवाल हैं, इज एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट की डेफिनेशन पे क्वेश्चन है एंड देन सेक्शन 4 पे कॉम्पिटिशन एक्ट क्वेश्चन है। देन दे हैव डाइव्ड इनटू एनवायरमेंटल लॉ, ताकि कुछ छूट ना जाए। आप देखिए मतलब एक तरह से आप देखिए कि हर टॉपिक पे इन्होंने ऑलमोस्ट दे हैव टच्ड बेस्ड ऑन एवरी टॉपिक। सो यू कांट रियली, आई वुडंट से दैट दैट यू कैन लीव आउट एनीथिंग मेजरली, बट इफ यू सी देयर इज नो एविडेंस। अब मुसीबत यह है कि अब आप बिल्कुल ही छोड़ के चले गए और डाइंग डिक्लेरेशन पे 2 प्रश्न आ गए, तो इसीलिए लमसम मोटा माटी तैयारी करनी है। यू डोंट हैव टू take a very deep dive, of course अगर मैं like a very in-depth video in fact बन भी नहीं सकता शायद, however I've tried my best to talk to you in this session and
Yeah, let's take it forward. Then environmental law में statutes की sequence. So Forest Act, Wildlife Act, NGT Act. Now NGT Act, अच्छा NGT से फिर याद आता है कि अब LLM का पेपर कर रहे हैं तो first chairman of NGT. NGT Act of course 2010 etc. तो is it a statutory body? Is it a constitutional body? Stuff such as that needs to be revised. Environmental law में landmark case law की list पूछी गई है. Then trademark and IPR they have gone into, and section 27 subsection 2 is which of the Trademark Act enshrines within itself which principle. And then contempt में maximum punishment कितनी है for criminal contempt. Companies Act again sequence of topic इन्होंने पूछ लिया. अच्छा competition act था, sorry, Companies Act में पहला सवाल is sequence of topics. Then GI tag की definition is IPR, author is IPR. इंटरनेशनल लॉ में चले गए हैं जी. WTO के मेंबर्स के बीच में आपस में झगड़ा हुआ तो वेयर दे कैन गो फॉर अ रेजोल्यूशन. इंटरनेशनल लॉ में अगेन इंटरनेशनल ट्रेड की बॉडी, UNCITRAL एट्सेट्रा एट्सेट्रा के बारे में 4 टर्म्स वहाँ पे दे रखी हैं. सो इंटरनेशनल लॉ आप देख रहे हैं कि रफली आपकी जो इंटरनेशनल लॉ की स्टैटिक जीके है उससे आपका काम बन जाना चाहिए. इग्नोर दी PCR साउंड पीछे से. एंड टॉट्स के ऊपर अब भैया चले गए. टॉट्स में लीगल मैक्सिम्स के आपके मैच द फॉलोइंग की लिस्ट बनाई हुई है. टॉट का कॉन्सेप्ट पूछा गया है. ट्रेड यूनियन एक्ट, लेबर लॉ अगेन 1 क्वेश्चन. NI एक्ट, लैंडमार्क केस लॉ अगेन 1 क्वेश्चन. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, RBI से कनेक्टेड 1 क्वेश्चन. आई वुड पुट देम ऑल अंडर मिसलेनियस टॉपिक्स. देन 300 IPC में इलस्ट्रेशन सीक्वेंस में चला गया है कि जी सीक्वेंस बता दीजिए. वेरी स्मार्ट ऑफ देम, पता नहीं कौन रहा है क्वेश्चन बनाते हुए. एंड देन टॉर्ट्स में क्लासिक केस लॉ की आपकी वही स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, नेग्लिजेंस, रायलैंड वर्सेस फ्लेचर एट्सेट्रा एट्सेट्रा. एब्सोल्यूट लाइबिलिटी तो खैर उस क्वेश्चन में नहीं है. एंड this all of these 4 match the following questions. You can follow it up with process of elimination. तो कॉन्स्टिट्यूशन के रफली 14 हैं आई थिंक. मतलब अगर आप क्लासीफाई करेंगे यू कैन इवन टेक देम टू 16 अगर आप क्लासिक केस लॉज वगैरह डालेंगे. प्रिज्यूम देम टू बी अराउंड 15. डू नॉट टेक ये पत्थर की लकीर वाली फिगर्स नहीं है, दे वेरी रफ. CPC के 3, ICA के 5, ज्यूरिस के 4, इंटरनेशनल लॉ के अगेन 5, टॉर्ट्स के 3, IPC के 3, IPR के 3, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स 2, कॉम्पिटिशन एक्ट 2, फैमिली लॉ 5. सो इफ यू सी दिस, कॉन्स्टिट्यूशन के तो 15 आप लगा लीजिएगा, 15 के 20 भी हो सकते हैं. तो वो जो केस लॉज, लैंडमार्क, क्लासिक केस लॉज वगैरह वो मैंने वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लासीफाई करें. 15 से 20 आप कॉन्स्टिट्यूशन के मान के चलेगा. तो सबसे पहले अगर अपनी तैयारी कर रहे हैं ना, होपफुली यू वॉचिंग टिल नाउ, कॉन्स्टिट्यूशन का काम कर लीजिए सबसे पहले. अगर आप मेरी राय मानेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लीजिए. सो दैट विल दैट गेट्स यू 15 4s are roughly around 60 odd marks. अगर ऑफ कोर्स सारे के सारे करेक्ट हुए, बट सारे के सारे होंगे नहीं. यू विल यूजुअली गेट 5 इनकरेक्ट. तो 10 तो आए, तो 10 into 4 is 40 marks. तो यहाँ से आए. तो दैट्स हाउ यू क्रैक अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एट द एंड ऑफ द डे. ये जो बाकी जो टॉपिक्स हैं अगर आप इनमें देखें तो 5 मैक्स जा रहे हैं और फिर 3 3 3 2 के. तो फैमिली लॉ becomes an important topic. I would say subject number 2 is family law for you. Revise that. All the classic case laws and all concepts from HMA and major concepts from Mohammedan law. Then step on over to international law. International law में United Nations and all that jazz. आपके ये जो boundaries हैं, territorial sea, the high waters, etc. All of that is international law. Come on over to torts. Torts is very easy to niptowify. Classic case laws and just revise voluntary non-fit injuria की for example exceptions. Then IPC के major, well thank God they have not asking about BNS क्योंकि नहीं तो section number रटने पड़ते सारे के सारे. तो IPC के अंदर illustrations just revise them all, but sequence में भी पूछ देता है. तो chapter 4 general exceptions, stuff such as that, section 76 to 106 needs to be on your tips. They can also ask you match the following. यहाँ पे topic offenses रख देगा, यहाँ पे सामने sections match out करा देगा, stuff such as that. I'll try to create mocks on this pattern. IPR में again copyright का tenure, patent का tenure, trademark का tenure, GI tags, all but ज़्यादा in depth नहीं. हाँ, trademark के अंदर कहीं पे like for example copyright के अंदर fair use का section number, that sort of a question always tends to pop up. Jurists, major legal philosophers, their schools and quotations, find them on the internet. You will be able to
you'll be able to look them up. ICA is very easy to, don't tell me that you are having any trouble with ICA. CPC and limitation, free resource on YouTube, make use of it. Angutha Vangutha daba dena uspe. Any which way, I do not like to say that, all of that, I've never said that in my videos, but kya kare ji. Papi पेट का सवाल है and nobody really helps out. Any which way. Interpretation of statutes and Competition Act, ये यहाँ पे दो हैं. इसको मतलब टैकल आउट करने के लिए PYQs, जस्ट हैंडल them out. बैंकिंग से एक आया था, NI से एक आया था, लेबर से 2 आए थे, एंड लीगल जी के बाकी सारे के सारे. तो दिस एड्स अप टू 53. एक्चुअली इट शुड एड अप टू 55. और बाकी जो 20 सवाल हैं वो मिसलेनियस हैं. Like for example, industrial disputes, RTI, Maxims, SOGA, partnership, miscellaneous है. Can't really, एक सवाल आ रहा है from all of these acts. तो अगर बिल्कुल ही बेयर एक्ट वर्ड टू वर्ड कॉमा टू कॉमा पढ़ेंगे, जुडिशरी प्रीलिम्स नहीं है पहली बात ये, लेकिन उससे आई वुड से अपने आप में कम भी नहीं है. तो एक सवाल के लिए अगर आप पूरे पूरे कानून में कूद जाएं, so that is a bad strategy. The strategy then is to focus on one major subject first. Miscellaneous जितने भी entrances, I think यहाँ पे एक किताब मिलती है at the Faculty of Law दिनकर वाले पे, या कहीं पे भी Amazon पे कर लेना, पास्ट ईयर LLM, तो वो एक कंपाइलेशन करके देता है. आई थिंक सिंगल वाले की पब्लिकेशन है, और उसके अंदर वो सारे के सारे एंट्रेंसेज ILI, DU एक्सेट्रा सारे के सारे क्वेश्चन पेपर आपको लगा के देता है. एंड मैं कहूँगा कि इन वाले टॉपिक्स के PYQs कर लीजिए. दैट इज़ अ मच बेटर वे टू प्रिपेयर, बिकॉज अदरवाइज अगर एक एक्ट उठाना शुरू करेंगे 2 ही महीने नहीं होगा, सवाल ही नहीं उठता कि हो जाए. बट मेजर सब्जेक्ट्स में काम कर लीजिएगा. CPC का तो मैंने आपको रिसोर्स बता ही दिया, राइट. एंड I think since limited number of seats in DU, I'm specifically talking about DU, you're looking at a 180 plus range, basically a 60% out of a 300, maybe even 200. I have not followed the cutoff trends. I was busy with the other entrances, so I have not observed it last year as to what was happening. If you need more practice, of course, shameless promotion and marketing. Go for the mock series, whether arts or whether from anywhere else. How does it matter to me? Whatever suits your pocket, just check the quality, quantity, and the content therein. We try to provide an explanation for every question. Hopefully this session has been of help to you. Download the question papers from our website and see as to what you can manage in 2 months. If you're starting out from scratch, follow the subject-wise prep that I've told you. Do that. And you can take the fairest shot. Maybe other channels will have it. I didn't follow the cutoff trends last year. I was busy with LLB and usually judiciary now, but I will follow it this year. And perhaps I do not have the required information to tell you about the cutoff very honestly, of what went into DU, what was for BHU, whatever was for wherever. ILI वगैरह का paper should be in May. So try to prepare for that as well. AILT again now is December. CLAT PG is December. And खैर CLAT PG तो आप लोगों ने दिया ही होगा जो लोग इस टाइम पे ये सेशन देख रहे हैं. Yeah, and that's about it. If you need to know anything else, hopefully you've jotted down the topics and hopefully you've marked it out with the question paper copy. You let me know in the comments. I will definitely try to answer each and everything that I can possibly answer, and as honestly as possible as I can. I wish you all the very best in your prep. I hope that you end up securing a seat, and wishing you all the very best, and to take very good care of yourself. Study hard. May God bless you. Have a great day or night ahead, in whatever time that you're watching this. Wishing you all the best. Take care. Bye.